नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। जो यूएस और ईरान का वॉर चल रहा है, व्हाट विल इट टेक टू स्टॉप दैट वॉर? देखिए, यस, दिस इज अ वेरी, इसके बारे में ना सभी लोग सोच रहे हैं कि ये होएगा कैसे। ये जो इसका बैकग्राउंड आई एम श्योर तुमको यू मे बी वेल अवेयर ऑफ। आई जस्ट कम ऑन टू द वेदर देयर इज एनी वे टू स्टॉप दिस वॉर। एक शुरुआत कब हुई थी? 28 फरवरी को शुरुआत हुई थी। इससे पहले भी ये कुछ एक लास्ट ईयर भी हुआ था। राइट। 12 दिन के लिए इसराइल और ईरान के बीच में हुआ था। 12 दिन, आई थिंक 12 दिन की थी। ऑपरेशन हैमर और समथिंग हाँ, कुछ नाम दिया था। कुछ right? था, वो हुआ था। और उसके अंदर उनका पर्पस क्या था कि भाई इनको, इनके जो भी न्यूक्लियर आर्सनल है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है इनकी, जिसके जिसके मदद से वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना, सो दैट देयर इज अ इनहेरेंट सिक्योरिटी टू द रीजन। राइट। That was the purpose of it last year. When the war started this year, इनका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या था? मिलिट्री ऑब्जेक्टिव दो था। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि हम रिजीम चेंज करेंगे, ठीक है? दैट वाज द फर्स्ट मिलिट्री ऑब्जेक्ट। एंड सेकंड वाज कि जो भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अगर इस देश के पास है, उसको हम हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करें। इस दो मुद्दे से इन्होंने ये लड़ाई चालू करी। अगर हम देखें कि भाई दोनों, हैव दे रीच्ड एनीवेयर? नोवेयर। दे हैवंट रीच्ड एनीवेयर। 100 दिन लड़ाई हो चुकी है, एंड इट इज इजराइल एंड यूएस कंबाइंड फाइटिंग विद ईरान। Israel and US combined fighting with Iran. So this is the scenario which is existing as of today. Now, what the question which you asked was, is there any way that, now what has happened? There has been one understanding, memorandum of understanding has been created between the two countries, between US and Israel. They have given their terms and condition. Israel has also given, Iran has given and US has given. But when you go through those, you will feel it is non-negotiable from both the sides. Like what they have done is कि उन्होंने कहा कि भाई देखिए, पहली उन्होंने 3-4 कंडीशंस डाली। मैं आई जस्ट गो ओवर दिस। जब आप मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा यार ये कैसे करेंगे ये लोग। पहली कंडीशन है कि बोला कि भाई टोटल सीज फायर होएगा। वो हो सकता है। सीज फायर, व्हेन दे से टोटल सीज फायर, इट इज नॉट ओनली बिटवीन ईरान एंड यूएस, बट राइट फ्रॉम येमेन, यस। येमेन, हमास, लेबनान। Hezbollah, Yeah. that is Lebanon, including those separatist group from Iraq, everyone to seize the fire. राइट। That is the first condition. इससे पहले वो हो जाएगी, then we go to the second stage. पहला condition हुआ, which is doable. I'll say which can be done. Now what is the second condition? Second condition which they have said कि US has said कि okay, you will Strait of Hormuz के अंदर जो भी आपने restriction, unrestricted movement of ships you have to allow. ईरान को बोला, and you will remove all the mines within next 30 days. That is the second condition. Iran ने बोला ठीक है, we will do it, but they have not said we do it. He said the naval blockade from your side has to be removed. Right. All sanctions levied on Iran have to be taken off. You will not put any restriction on our oil. We can sell it to anywhere, we can send it to anything. That is so this is the kind of a condition which they have put for the, and जो frozen assets है वो आप हमारे वापस करेंगे. So it's almost like अगर अमेरिका एक्सेप्ट कर लेता है, वो अपनी डिफीट एक्सपेक्ट कर। So this is what the thing is there, and they're also saying, so ये तो हो गया second part, and they've also said कि भाई your presence in this region has to be off so that the security of this environment, a region can come. You see the conditions which are coming up. चलो कम से कम at least they are talking and they are giving it out. So this is the part 2. He said when you do these 2 parts, then we talk to the third part. And what is the third part? Is the nuclear part. आपने ये 2 पार्ट तो देख लिया। अब तीसरा पार्ट क्या बोला कि भाई न्यूक्लियर जो है वो आप you will do no, मतलब none of your nuclear projects will see a daylight from the point of making a nuclear bomb. That is, and whatever you have the highly enriched uranium जो उनके पास है, which they claim कि उनके पास है, US says कि that you will hand it over for disposal. ठीक है?
ये हो गया 30। और आखिरी में बोला कि अच्छा भाई, ईरान ने बोला कि अच्छा भाई उसके बाद एक हम मॉनिटरिंग ग्रुप बनाएंगे जो कि यकीन करेगा, बिकॉज दे डोंट बिलीव यूएस, बिकॉज व्हाट हैड हैपेंड, उनके पास रीजन 2002 से लेके 2015 तक इस दौरान यूएस ने सैंक्शन लगा दिए थे, और 2015 में एक डील साइन हुई कि ठीक है, वील रिमूव ऑल आवर सैंक्शंस एंड यू दे सेड कि वी विल नॉट डेवलप एनीथिंग न्यूक्लियर व्हिच विल रिजल्ट इनटू एनी न्यूक्लियर वेपन. They gave out in this, and life became normal. In 2018, when the Trump regime came in, they cancelled. He said, no, nothing doing like that. The sanctions are there, and we'll renegotiate this nuclear part of it. So now, so they have lost the faith in each other's this thing. So इस तरीके के अगर आप टर्म्स लगा रहे हैं, तो मेरे को तो नहीं लगता है कि ये वॉर जल्दी खत्म होएगी. लेकिन एक रे ऑफ होप इसमें यह है कि हो सकता है कि अगले 3 से 6 महीने या साल में कुछ एक कंडीशंस दोनों ही पार्टी मॉडरेट करने. इस समय तो दे हैव जस्ट गिवन द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. यू नो, व्हेन यू स्टार्ट द नेगोशिएशन, एक उसके अंदर है यू गिव व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू. ठीक है, दिस इज माय बेस्ट आई वांट फॉर मी. And thereafter you start negotiating, and then you come up with some kind of you moderate your requirement, he moderates his requirement, and maybe I feel आने वाले टाइम में शायद कुछ ना कुछ आपस में जिसे बोलते हैं ना compromise करके they will come out, because it is impacting the whole world. Right. 20% of your globe oil flows from that Strait of Hormuz. It's not there. You see the impact. We are facing the impact. Correct. No, there are a lot of countries which are having much tougher time than us. So we have to, this issue has to get addressed soon, otherwise things are going to get bad. Right. We were hoping कि अभी ये सब बात हुई थी, अभी तो हमें लगा कि शायद कुछ हो जाएगा, पर I think yesterday, day before, US again destroyed some of their drones in Strait of Hormuz. They destroyed their EW radar in the island called Qasem करके एक island है, उसमें उन्होंने destroy किया. Kashmir Island, I think. हाँ, और उसके रिजल्ट में इन्होंने कुवैत में, बहरीन में उनको उनके पर, सो मतलब अगेन there is a conflict has restarted. I think कुवैत में उन्होंने अटैक किया था, उसमें एक इंडियन ओरिजिन इंसान की डेथ हुई है एयरपोर्ट के ऊपर उनका. हाँ, सो इस तरीके से है. अभी देखते हैं आगे क्या चलता है, बट ये पूरे रीजन के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है, बहुत ही चिंताजनक, एंड थिंग्स आर गोइंग टू गेट वेरी टफ इन द टाइम्स टू कम. So what I was saying is कि कुछ दिन पहले एक Axios की रिपोर्ट आती है जिसमें ये रिवील किया जाता है कि जब सब कुछ शांत होने वाला था, शायद तभी इजराइल ने लेबनान में शायद बॉम्बिंग की थी, एंड उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप और बीबी नेतन्याहू की बात होती है ऑन अ कॉल, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप इज शाउटिंग एट हिम कि सब कुछ मैं सही करने वाला था, बट यू हैड टू कम इन एंड डू दिस राइट नाउ. एंड ही सेड हिज अपेरेंटली वर्ड्स वर कि इसीलिए पूरी दुनिया तुम्हें हेट करती है. तो आई डोंट थिंक दिस वॉर इज गोइंग टू स्टॉप एनी टाइम सून. Probably कुछ मिराकल चाहिए होगा इस वॉर को रोकने के लिए. नहीं, जरूर होएगा. There is always hope in when things are down. There is always a hope. Yeah. होएगा, बिल्कुल होएगा. Right. I'm very positive कि ठीक है, टाइम लगेगा, बट ये कि जितनी जल्दी हो जाए वो पूरे दुनिया के लिए अच्छा है. Right. पूरी दुनिया के लिए. अभी सभी ये नहीं कि आज अगर सीज फायर हो जाए और बोले सब चीज ठीक है, उसको नॉर्मलाइज होने में भी 6 महीने लग जाएंगे. करेक्ट. सिस्टम्स को नॉर्मलाइज होने में 6 महीने लग जाएंगे. इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है, इतना लॉस हुआ है इस पूरे रीजन के अंदर. सो दैट इज इट.